ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا۔ ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے، آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں، لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں،
سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. What is the meaning of that beautiful words? ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کتنے حسین تھے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. اللہ نے ایسا حسین بنایا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے
बाज़ औक़ात आपको ख्याल आता होगा ये दावत इस्लामी आला हजरत का नाम बहुत लेते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान की बात बहुत करते हैं, हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। ये एक शेर आज समझ लेना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़े अक्लमंद लोग जो होंगे जल्दी पिक कर लेंगे। अमेजिंग बात की है आला हजरत ने, वो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। कहते हैं हजरत यूसुफ के हुस्न पर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गईं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर तो अरब के नौजवान, अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया ये शेर ना, आपको बात समझ आ गई। मगर जरा इस शेर की अब गहराई में जाते हैं। ये शायरी की दुनिया का शाहकार है, उलमा मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए आला हजरत ने कैसे इल्म के दरिया बहाए हैं। जरा मेरे साथ रहिएगा, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। हुस्न का मतलब ये कि औरतों ने देखा था ना जलवा, तो पहला क्या हो गया? हुस्न। किसका हुस्न था? हजरत यूसुफ का। मेरे साथ रहिएगा, आप एंजॉय करेंगे सारी जिंदगी शेर को। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। दूसरा क्या है? किसका हुस्न? यूसुफ। क्या कटी? उंगलियां कटी। कटी या कट गई? कट गई ना, बेसाख्ता कट गई तो कटी। ओके। पांचवी बात क्या है? किसकी उंगलियां थी? औरतों की उंगलियां थी। छठी बात क्या है? वो औरतें किधर की थी? मिस्र की थी। अब जरा समझिएगा, औरतें नाकिसुल अकल होती हैं। ये उंगलियां काटी नहीं गई, बेसाख्ता कटी हैं। और क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं। किस बात पर कटी हैं? हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर कटी है। 6 बातें हैं, याद रखिएगा। आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है, देखा नहीं है। हुजूर आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर क्या वहां कट गई हैं। यहां कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, होशो हवास में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं हुजूर, उधर सर कटवा रहे हैं। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे रजा ने कमाल कर दिया और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीम नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखे तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय मेरे आका कैसे हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना, कहते हुजूर मैं ईमान तो अब लाया हूं, मगर ईमान लाने की एक बड़ी वजह बताऊं आपको। वो वजह यह है कि जब आप झूले में थे ना बचपन में, तो मैंने नोट किया कि आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ जाता था। हजरत अब्बास आपके चचा कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी लतीफ सी बड़ी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बाज़ औक़ात बुजुर्ग हमें भी शर्मिंदा कर देते। जब हमारे खानदान के बुजुर्ग आते हैं ना घर में, कहते हैं बेटा बचपन में तुम ये करते थे। वो कभी कभी ऐसी बात करते कि हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं, ताया हुजूर की बात माननी पड़ती है। ठीक है आप कह रहे हैं तो किया होगा, माफ कर दें भाई, बताएं तो ना सबको। बचपन में तो बहुत कुछ किया था, लेकिन याद नहीं होता। नबी पाक से हजरत अब्बास कब की बात कर रहे हैं? सरकार झूले में है। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि ए चाचा मुझे क्या पता मैं झूले में क्या करता था। आका फरमाते जी चाचा जान, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था।
चांद मुझे रोते वक्त चुप कराया करता था। ऐ मेरे चाचा जान, मैं अपने चांद की आवाज सुनता था जब वो रब की बारगाह में सजदा किया करता था। अरे बचपने में जिस नबी का आलम यह है, शबाब में आलम क्या होगा। आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। ऐसा हसीन, ऐसा बाकमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है, अगर वाकई किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है, तो मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं। आंखें कैसी हैं पूछो आला हजरत से। कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कान मुबारक कैसे हैं दूर और नजदीक के, सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुबारक होंठ कैसे हैं, कहते पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे जबान मुबारक कैसी है, कहते वो जबान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सपोर्टिंग कैसे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथों में ताकत कैसी है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट कैसी है, अरे आका मुस्कुराए तो रोतों को हंसा दे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किस किस वस्फ की और जिसमें अथर की किस किस बात की बात की जाए। सारी दुनिया के खजाने रब ने अता फरमाए, मगर सादगी का आलम क्या है। फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे आका हैं तो फिर किसी और से प्यार कैसे हम कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। अब चलते हैं कि दूसरा रीजन कि जनाब हसीन ना भी हो तो कोई बाकमाल होना उससे प्यार हो जाता है। स्पेशल एबिलिटीज हो, कमाल के उसके मामलात हो, तो बंदा उसका दीवाना हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। अगर वाकई बाकमाल से प्यार करना है, ऐ नौजवानों सुनो, तो कमाल के दर्जे पर पहुंचता जब है जब नबी पाक के कदमों की हाजिरी देता है। अल्लाह ने कैसा बाकमाल बनाया। ठीक है, दुनिया में बहुत बाकमाल लोग आए होंगे, कोई ऐसा है जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े कर दे? कोई ऐसा है जो दुआ करे तो चांद वापस जुड़ जाए? आज तक हम अपनी टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग, इफ्तार की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं कि जनाब आज इतने बज के इतने मिनट पर सूरज गुरूब हो जाएगा, इतने बजे ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा। सदियों से सूरज अपनी रफ्तार और अपनी डायमेंशंस में चल रहा है। मगर एक दिन ऐसा भी आया कि जब मौला अली की नमाज जा रही थी, मेरे आका ने दुआ फरमाई तो सूरज वापस पलट आता है। अरे मगरिब के बाद तो नॉर्मली ईशा का वक्त होता है, मगर मकाब सहबा पे ये कुदरत का नजारा लोगों ने देखा कि मगरिब का वक्त होने के बाद फिर असर का वक्त होता है। अरे ऐसा कमाल दुनिया में किसके पास है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाकमाल बनाया। साहबा कहते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया, इतना पानी जमा हुआ कि एक बर्तन भी पूरा नहीं हुआ। अब नबी पाक ने कैसा मौजज़ा दिखाया, जरा सोचिए कि ये तो हमने हजरत मूसा का मौजज़ा सुना है कि आपने जमीन पर असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। देखिए लॉजिकली जमीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था। नबी पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी कहते 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, जनाब बर्तन भर लिए। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, का थे तो 1400, लेकिन जोश ऐसा था कि 1,00,000 होते सबको पूरा हो जाना था। है कोई ऐसा बाकमाल? अल्लाह अकबर। और मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो कलब रजा कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं
प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। अगर आप किसी स्पेशल से ही प्यार करना चाहते हैं तो नबी ये पाक से ज्यादा बाकमाल कोई नहीं है। इस दुनिया में अथॉरिटीज के साथ साथ रब ने आसमानों पर इख्तियार अता फरमाया, रब ने इस पूरी कायनात पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह के हबीब फरमाते इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, आका फरमाते बेशक मुझे रब अता फरमाता है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तो ये बात आज अपने अकीदे को भी दुरुस्त कर लो। से लोग आते कहते हुजूर हमारे इलाके क्या जो है वो पानी कुआं खोदा कड़वा पानी निकला है, अब कड़वा पानी निकला, इसमें नबी पाक के पास क्यों आए हो भाई? वो जानते थे इनकी निगाह करम से बहुत कुछ हो जाता है। आका तशरीफ ले जाते, उस कुएं में कुल्ली फरमाते, वो पानी मीठा हो जाया करता था। कैसा लुआब दहन है, हसीनों से प्यार करने वालों, किसी के थूक में कमाल देखा है? थूक से घिन आती है, अल्लाह ने ऐसा लुआब दहन अता फरमाया। हजरत एक बड़े प्यारे साहबी हैं उतबा, वो कहते उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहते मैं उनकी 4 बीवियां थी, वो चारों बीवियां एक बात आपस में करती थी कि हजरत उतबा पता नहीं कौन सी खुशबू लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, वाइफ अपने शौहर के लिए तैयार होती, मगर देखती हजरत उतबा उनसे भी ज्यादा महकते थे। एक दिन चारों ने मिलकर पूछा हुजूर हमने कभी आपको खुशबू लगाते देखा नहीं, छुपके लगता है आप लगाते, कौन सी खुशबू लगाते हैं? तो उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। और आप खुशबू नहीं लगाते, इतने महकते कैसे हैं? कहले हुआ ये कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज हो गई, मैं नबी पाक की बारगाह में गया। आए हाय, साहबी का अकीदा देख रहे हो, बॉडी पे प्रॉब्लम तब भी नबी पाक के पास जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा मेरे पास क्यों आए हो, जाओ किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। आका फरमाते अपना कुर्ता उतारो। हजरत उतबा कहते मैंने कुर्ता उतारा, मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू किया। कहते उस दिन से बीमारी दूर हो गई, जिस्म ऑटोमेटिकली महकने लग गया है। ऐसे बाकमाल आका हैं, अल्लाह अकबर। एक बार एक सहाबी कहते मैं तलवार से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते गजवे में मेरी तलवार टूट गई। आका के पास आया, कहता हुजूर तलवार टूट गई है। नबी पाक ने लकड़ी पकड़ा दी, कहते लकड़ी पकड़ कर चला गया मैदान में, वो लकड़ी ही तलवार बन गई। हाय हाय हाय, कैसे बाकमाल आका। एक बार क्या हुआ, 2 सहाबा कहते हैं रात हो गई, नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, अब वापसी का वक्त आया। मिसाल देता हूं आपको, अभी तो हम बाहर जाएंगे, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास गाड़ी, सब में लाइटें होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी, हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ब्लैकआउट हो जाए, स्कूटर की गाड़ी की लाइट भी ना हो, तो कैसे रास्ता मिलेगा? उस जमाने में गांव में सोचे कोई लाइट नहीं है और वापस जाना है, रोशनी नहीं है। नबी पाक से अर्ज करते हैं हुजूर वापस जाना है, रोशनी नहीं है। प्यारे आका ने एक लकड़ी दी और उसको हाथ टच कर दिया, कहते हैं बाहर निकले तो वो लकड़ी टॉर्च की तरह रोशन हो गई। अच्छा, दोनों सहाबी जो है उस रोशनी के सहारे चलने लगे, चलते 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 अपने घर के पास पहुंचे तो अब टी जंक्शन आ गया। टी जंक्शन से मुराद क्या होता है? आगे रोड बंद, एक सहाबी का घर दाईं तरफ, एक का बाईं तरफ। अब दोनों सोच रहे लकड़ी लेके कौन जाए, रोशनी तो एक के साथ चली जाएगी, दूसरा अंधेरे में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। रिवायत के अल्फाज हैं, दूसरे सहाबी ने जमीन से लकड़ी उठाई, उस लकड़ी से टच की, वो दूसरी लकड़ी भी रोशन हो गई। नबी पाक के नूर की बात तो बाद में करना, आका जिसे टच कर दे वो नूरानी हो जाता है। ये शान है मेरे आका की। अगर बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो इनसे बड़ा बाकमाल कोई नहीं। एक बार नबी पाक ने हजरत जिब्रील अमीन से बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। आपको पता है हजरत जिब्रील अमीन कमाल की शख्सियत है, फरिश्तों के आका तो हैं मगर वो हर नबी के सहाबी हैं। हाँ, हर नबी के सहाबी, हर नबी को देखा उन्होंने। तो नबी पाक ने बड़ा प्यारा सवाल किया, फरमाया जिब्रील तुमने सबको देखा है, एक जहान देखा, हर नबी से मुलाकात हुई, कोई मुझ जैसा भी देखा है? हाय हाय, सवाल देखो, इसका जवाब सुनिएगा। जिब्रील अमीन से सवाल क्या हुआ कि जिब्रील कोई मुझ जैसा भी देखा है? जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया ना, मैं उनकी जबानी नहीं बल्कि आला हजरत की जबानी सुनाता हूं, जो आला हजरत ने अपने शेर में हमें बताया। आला हजरत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले। एक बार सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं बहुत भूख लगी थी। ये भी देखो साहबा पे ऐसा वक्त भी आता था कि कई कई दिन नहीं खाते थे। कभी हमारे पास भी पैसे कम हो जाए ना, पसंद का खाना ना मिले तो शिकवा ना किया करो। अल्लाह वाले शिकवा नहीं करते। इतनी बड़ी हस्ती है मगर कहते इतनी भूख थी कि पेट कमर से लग गया था।
भूख से बुरा हाल था। मैं नबी पाक के घर के बाहर बैठ गया, मगर खुददारी ये थी कि कहा मुझे शर्म आई कि मैं किसी को कहूं कि मुझे खाना चाहिए। आज छोटी छोटी बात पर लोग हाथ फैलाते हैं, मदद मांगने निकल जाते हैं। ऐसा ना किया करो। शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। सैयदना अबू हुरैरा कहते मैं आका के दरवाजे पर बैठा हूं, थोड़ी देर हुई तो सिद्दीक अकबर गुजरे। मैंने उनसे एक शरई मसला पूछा। कहते मैंने शरई मसला इसलिए पूछा कि मेरा चेहरा देखें, मेरी हालत देखें, तो जवाब देते देते समझ जाए मुझे भूख लगी है तो कुछ खाना भी खिला दे। कहते सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया और चले गए। अब मेरी हिम्मत तो ना हुई वो कहता कि मुझे भूख बहुत लगी है। कहा नबी पाक तशरीफ लाए। जब आका ने मुझे देखा तो मुस्कुराए। आका तो दिलों के हालात जानते हैं ना, पहचान गए कि अबू हुरैरा की क्या कैफियत है। कहा अबू हुरैरा चलो मेरे साथ। घर ले गए। घर गए तो पूछा कुछ खाने को है। घर वालों ने कहा कि एक प्याला दूध का अभी अभी कोई तोहफे में देकर गया है। नबी पाक ने फरमाया ए अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को ले आओ। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा देखा होगा ना अपने मदीने शरीफ में। अल्लाह आपको बार बार मस्जिद नबवी की हम सबको हाजिरी अता फरमा। ये बिल्कुल रोज़ा रसूल के बाहर एक चबूतरे पर बैठते थे। सारे गरीब साहबा होते, पूरा लिबास भी बाज़ौकात नहीं होता, एक चादर बाज़ौकात जिस्म पर होती, कई कई दिन खाना नहीं खाते थे। नबी पाक उनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। फरमाया अबू हुरैरा जाओ सारे असहाबे सुफ़ा को ले आओ। अब हजरत अबू हुरैरा कहते भूख से मेरा बुरा हाल, प्याला एक दूध का और वो 70 साहबा, वो आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। मगर कहते नबी पाक का हुक्म था। मैं गया और 70 साहबा को ले आया। मुझे दिल में ख्याल तो आ रहा था एक प्याला है, मेरा अभी पेट पूरा खाली है और ये 70 साहबा आ गए। नबी पाक ने एक और कमाल ये फरमाया अबू हुरैरा प्याला लो और सबको पिलाओ। अच्छा कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि शदीद भूख लगी और हमारी ड्यूटी लगा दी जाए लोगों को खाना खिलाने की। बंदा कैसा 80 पहले भूखे और दूसरों को खिला रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा सबको दूध पिला रहे हैं। अच्छा जाहिर है ख्याल भी आता होगा ये तो 2-3 बंदों में ही पूरा हो जाएगा। पहले साहबी ने दूध का प्याला लिया, कहते बिस्मिल्लाह पढ़कर पेट भरकर दूध पिया। मैं दूसरे के पास लेकर गया, उन्होंने भी पेट भरकर दूध पिया। सबको भूख लगी हुई थी। कहते एक एक करके 70 साहबा ने दूध पी लिया, प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब सैयदना अबू हुरैरा कहते मैं रह गया और नबी पाक रह गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा पियो दूध। और थोड़ी पंजाबी विच कहते ना, कहते मैंने रच के दूध पिया, पेट भर के दूध पिया। जब दूध पी लिया आका अलैहिस्सलाम फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह पे लगाया, फिर पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने तीसरी बार पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने फरमाया, मैंने कहा बस आका अब मेरी बस हो गई है। तो अब नबी पाक ने वो प्याला लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे आका ने वो पूरा दूध नोश फरमा लिया। ये कैसे बाकमाल आका हैं कि एक दूध का प्याला है 70 साहबा का पेट भर जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इसी मौजज़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, बल्कि सवाल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर। फारसी में शीर कहते दूध को। ए अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो कैसा दूध का प्याला था। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह अकबर, ये है मेरे आका। बहरहाल अगर मैं कमालात बयान करता जाऊं सारी रात निकल जाएगी। आइए मैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूं। हसीन अगर से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन कोई नहीं। बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो नबी पाक जैसा बाकमाल कोई नहीं। अब आओ वो तीसरा एस्पेक्ट जो है, वो तीसरी बात जो किताबों में लिखी गई कि जनाब बंदा उससे प्यार करता है जो ख्याल करने वाला हो, जो फिक्र करने वाला हो, जो एहसान करने वाला हो। अल्लाह अकबर। आओ जरा इस पैराए में नबी पाक को देखते हैं। खुदा की कसम दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा बता दें जो आपके पैदा होने से सदियों पहले आपको याद करने वाला हो। अरे अल्लाह अकबर। आज लोग बड़े बड़े लोगों से मोहब्बत करते हैं। कभी कभी मैं किसी के घर जाता हूं, देखता हूं पता नहीं किसकी तस्वीर लगी है, किसी एक्टर की, किसी क्रिकेटर की, और पता नहीं किसी सियासतदान की। मैं कभी एक बंदे से पूछा यार ये जो मशहूर आदमी है वो तुम्हें जानता है। कहता मुझे कैसे जानेगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कभी तुम्हारा ख्याल रखा उसने? कहा मौलाना साहब जब जानता नहीं तो ख्याल कैसे रखेगा। मैंने तुम उससे मोहब्बत बड़ी करते हो। कहा मैं तो बाल भी उस जैसे बनाता हूं, कपड़े भी उस जैसे पहनता हूं, बोलने की कोशिश भी उसके स्टाइल से करता हूं।
अरे अल्लाह के बंदो, तुम उससे मोहब्बत करते हो ना तुम्हें जानता है, न कभी तुम्हारा ख्याल रखा। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले जो हमारे लिए दुआएं कर रहा था, जो रातों को जागते थे, जो आंसू बहाते थे, अल्लाह अकबर। बल्कि जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब आका 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो सजदे में गए और जबान पर क्या जारी था? रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। अरे जब पैदा हुए तो हमें याद किया, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। वो रातों को रोया करते, वो नबी पाक उम्मत के गम में आंसू बहाया करते। मेराज की रात जब रब की बारगाह में गए, अरे इतनी बड़ी मुलाकात नसीब हुई थी, वो हमें वहां भी ना भूले, हमें भी वहां भी याद करते रहे। आपको पता है नबी पाक को एक शानदार इनाम क्या मिला? कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आयत है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने फरमाया, ए महबूब, हम अनकरीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कभी सोचा आपने? ये ब्लैंक चेक था। आपको कोई ब्लैंक चेक दे कि जो भरना है भर लो, बल्कि जो मांगना है मांगो। हम क्या मांगेंगे? अपने लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। नबी पाक से रब फरमा रहा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, अमन करीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? जिब्रील अमीन जब ये आयत लेकर आए ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। ऐसे आका मिले हमें जो हर मौके पे हमें याद करने। उनसे मोहब्बत ना करूं मैं, बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में तो हमें याद रखा, बल्कि जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था ना, तो लब मुबारक को जुम्बिश हो रही थी। एक सहाबी रसूल कान करीब ले गए तो मेरे आका कब्र में भी उम्मती उम्मती पुकार रहे थे। उलमा कहते हैं आज भी कब्र अनवर में अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और महशर के दिन क्या हाल होगा? खुद फरमाते हैं, और नबियों के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक ना बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा। मैं इस खौफ से अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहूंगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। ये कैसे आका है? सारी दुनिया जन्नत में जाने को तड़प रही होगी, और आका फरमाते मुझे ये खौफ होगा मेरा रब जन्नत में मुझे ना भेज दे, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। तलाश कर करके उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब इसी कयामत का मंजर किस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। तो कहते हैं, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका इस तरह अपने गुनाहगारों को तलाश कर रहे होंगे, अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे, जैसे किसी मां का बच्चा बिछड़ जाए वो किस तरह तलाश करती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहां होंगे? एक हदीस में एक सहाबी ने पूछा ना, हुजूर कयामत के दिन आपको कहां ढूंढूं? फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। कहा हुजूर वहां ना मिले? फरमाया पुल सिरात पर आ जाना। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले तो कहा मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले, फरमाया 3 जगह के अलावा मुझे कहीं और ना पाओगे, मैं अपने उम्मतियों की मदद कर रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कि मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मेरे आका जो फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह होता चला जाएगा, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ख्याल करने वाले से प्यार करना है, किसी मोहब्बत करने वाले से प्यार करना है, तो मेरी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाले मेरे आका हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे मेरा याद रख रहे थे, मेरे लिए दुआएं फरमा रहे थे, और आज कब्र में भी याद फरमा रहे हैं, महशर के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हम उन्हें क्यों भूल जाएं? फिर हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें? आला हजरत यही तो पैगाम देते हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा, वो कभी भी नहीं भूले हमें। जो ना भूला हम गरीबों को रजा,
याद उसकी अपनी आदत कीजिए। क्या हम याद किए हुए अपने आका को? हम भुला बैठे। हाँ, हमारी आदतों में नबी पाक की आदतें नहीं हैं, हमारी जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नतें नहीं हैं। हम दावा तो करते हैं कि हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक नारा बार बार लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है? उसको हराम रोजी छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? उसको बेहयाई के काम छोड़ना कबूल क्यों नहीं? वो धोखा कैसे दे सकता है? आका फरमाते मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अगर आज मुसलमान धोखा दे रहा है, झूठ बोल के अपना माल बेच रहा है, कसमें खाकर अपना माल बेचते हैं, बाद में वो चीज नहीं निकलती है, ऐसा ना करें प्यारे इस्लामी भाई। अगर नबी पाक की कयामत के दिन शफाअत लेनी है ना, तो ऐसे काम तो करके जाओ कि चेहरा दिखा सकें, आका हमें देखकर अपने सीने लगा लें। आज तो मैंने आपको लॉजिकली रीजन से भी साबित कर दिया कि नबी पाक जैसा और कोई नहीं जिससे प्यार किया जाए, मगर प्यार जबानी सिर्फ ना होना, प्रैक्टिकली प्यार। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कैसी मोहब्बत है कि मुझे बताना पड़ता है मैं किसका उम्मती हूं? ऐसा होता है आजकल, कोई नौजवान, मॉडर्न नौजवान कभी सामने आता है ना, तो ना उसके चेहरे से पता चलता है वो मुसलमान है, ना उसके लिबास से पता चलता है मुसलमान है। थोड़ी बातें करे कि बंदा चले, कोई इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह जबान पे कोई ऐसी बात आएगी तो पता चलेगा मुसलमान है। नहीं जनाब, किसी तरीके से पता नहीं चलता ये मुसलमान है। जब अपना नाम बताता है ना, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद खालिद है, बंदा कहता अच्छा ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम। वरना कहीं से पता नहीं चलता। क्या ये है नबी पाक की गुलामी? ये है उम्मती होने का हमारा दावा? होना क्या चाहिए? फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मैं लाखों लोगों में जा रहा हूं ना, दूर से बंदा पहचान ले कि नबी पाक का उम्मती जा रहा है, ये आका का आशिक जा रहा है। इसका चेहरा, इसका लिबास, इसका अंदाज, इसका कारोबार है, इसकी गुफ्तगू, इसकी बातों में मिठास, इसकी ईमानदारी, इसकी सच्चाई बताए। अरे उम्मती ऐसा है तो आका कैसे होंगे? ऐसा उम्मती नहीं बनना चाहिए कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती, उसकी अखलाक ऐसे तो उसके नबी के अखलाक कैसे होंगे? ये उम्मती इतना ईमानदार है, इसके नबी कैसे अमानतदार होंगे? अरे उम्मती इतना सच्चा है तो नबी कितने सच्चे होंगे? मगर आज सच बताओ, क्या ऐसा हो रहा है? बल्कि आज उम्मती को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। मुसलमानों के बारे में बुरी बातें हो रही हैं हमारी वजह से, हमारे किरदार की वजह से। ऐसा ना करें। आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका के ऐसे उम्मती बनेंगे कि जिसके जरिए दीन का नाम रोशन होगा। अब शैतान पता है क्या करता है? ऐसी जब बातें बयान में हम सुनते हैं ना, तो शैतान ये वसवसा डालता है कि यार बातें तो सारी ठीक हो रही हैं, मगर मैं अकेला सच बोल के क्या करूं? मैं अकेला अमानतदार बन के क्या करूं? सारी मार्केट ही झूठ बोल रही है, सारा शहर ही बेईमानी कर रहा है, मैं ईमानदारी करूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ये मुझे फायदा क्या होगा? नहीं। देखिए एक बात याद रखें, फर्द से माशरा बनता है। मुझे कब्र में अकेले जाना है या पूरे खाने वालों को लेके जाना है? अकेले जाना है। अपने अमाल का जवाब मुझे देना है। मैं तो अपने हिस्से का चिराग जलाऊं ना। मैं तो अल्लाह की बारगाह में कह सकूं कि मौला मैं नबी पाक के तरीके पर अमल करके आया, मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं सच बोलकर आया, मैं नमाजें पढ़ के आया, मैंने अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की फरमा बरदारी करने की कोशिश की। अपने हिस्से का चिराग तो जलाओ ना। सारा माशरा जो भी करे, हम एक एक